Hello students, how are you all? Hoping that you are safe and your family is safe. Welcome to the online platform of SMD School. Now, this is our third lecture and in this lecture we will study about what beta? Coulomb's law. In the previous lecture we have studied about what? Properties of charge. तो हमने बेटा कुछ properties of charges पढ़ी थी. क्या थी properties of charge? उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? Charge क्या होता है? तो हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था? Properties of charge. उसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? Properties of charge में सबसे पहले हमने पढ़ा कि first property, that is additive nature of charge. Second is what? Quantization of charge. Third is what? Conservative nature of charge. Last one is what? Invariance of charge, that is mass relationship, mass and velocity. And finally, one property we know that like charges attract each other and unlike charges what? Repel each other. So these are the few properties which we have studied in the last class. In this class, today's goal is to understand Coulomb's law. ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो मेन गोल है वो क्या है? Coulomb's law को समझना है. Coulomb's law के एप्लीकेशन, मतलब आगे चल के एप्लीकेशन आएगी Coulomb's लॉ की, और Coulomb's लॉ का वेक्टर फॉर्म समझना है और कुछ उस पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखने हर टाइप के. तो स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट? Coulomb's लॉ. तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है भाई? Coulomb's लॉ है. देखते हैं Coulomb's लॉ क्या होता है. तो Coulomb's लॉ को साइंटिस्ट ने एक टॉर्सन बैलेंस नाम के एक्सपेरिमेंट से करा है. किससे करा है इसको? टॉर्सन बैलेंस. ठीक है, और टॉर्सन बैलेंस से इन्होंने Coulomb's लॉ को करा. देखिए इन्होंने क्या बताया कि इफ देयर आर टू चार्जेस, इफ देयर आर व्हाट? हाउ मेनी चार्जेस? टू चार्जेस. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट? Q1 and it is what? Q2. तो these are what? Two charges. Both initial condition, both are what? Positive. In the second case there are two different cases I have taken. Here is what? Q1 is positive and Q2 is what? Negative, and they are separated by a distance what? Small r. They are separated by a distance what? Small r. Then the magnitude on F1 due to what? 2. तो F12 is equal to F12, और ये क्या हो जाएगा? F21. ये कितना हो जाएगा बेटा? F21. ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन व्हाट? R स्क्वायर. इसका मतलब 2 1 के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, 1 2 के ऊपर भी उतना फोर्स लगा रहा है. इन मैग्नीट्यूड फॉर्म द वैल्यू इज व्हाट? सेम. ऐसा इन्होंने बताया. अच्छा, अगर हम डायरेक्शनली देखें तो F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, मतलब एक का डायरेक्शन इस साइड है तो दूसरे का डायरेक्शन इस साइड है. ये फर्स्ट केस के लिए. इधर देखिए Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है? Q2. यहां पर क्या था? रिपल्शन. नेचर कैसा है? सेम. यहां पर कैसा होगा नेचर? अट्रैक्शन. तो F1 इधर लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट? 2 पड़ा जाएगा. अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट? 1. अट्रैक्शन इस साइड होगा, और ये क्या हो जाएगा? F21. ये क्या था? 1 2. तो वो भी सेम आएगा. मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा, और डायरेक्शन कैसा आएगा? अपोजिट आएगा. ये Coulomb's लॉ है. ठीक है, लेकिन इस चीज को जिस चीज से फाइंड आउट करा गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्सन बैलेंस. मैं आपको थोड़ा इसका यूट्यूब पे दिखाता हूं कि किस तरीके की इसकी इमेज होती है टॉर्सन वैल्यू की. तो हम एक वीडियो में इसको देखते हैं कि क्या होता है टॉर्सन बैलेंस. तो आप उसको थोड़ा सा देखिए. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन योर मोबाइल. ठीक है, तो टॉर्सन बैलेंस, वी हैव टू गो फॉर दिस. So here is the just a minute. Yes. So this is what? This is torsion balance. Diagram of what? Torsion balance. And you can see, just listen up. Yes. Coulomb's torsion balance. Charles Augustin de Coulomb measured the magnitudes of the electric forces between charged objects using the torsion balance, which he invented. Coulomb's torsion balance is an instrument that enables us to verify experimentally the quantitative law of interaction between electrical charges. Coulomb's torsion balance consists of a cylindrical or square glass case closed by a lid. A glass tube emerges from the lid. The tube is closed with a piece of metal called torsion head. A torsion fiber is suspended from the torsion head. This fiber holds a horizontal needle made of lac with a small brass disc at one end and a sphere of elder width at the other.
The height of the needle is adjusted by a knob, which is turned to wind the suspending thread on a horizontal axis. A scale that is circumscribed on the glass case is used to measure the torsion produced in the fiber. Let us see how Charles Augustin de Coulomb deduced the famous Coulomb's law. In order to study the intensity of the interaction force between two charged bodies, the brass disc was made to touch a small metal sphere, which was at the end of a glass rod suspended from a hole in the glass lid of the balance. Coulomb observed that the thread suspended from the needle did not move as both the disc and the sphere are without charge. The sphere suspended from the lid of the balance was removed and charged. He placed the sphere back into the balance. The sphere and the brass disc repelled each other as the disc attained the same charge as the sphere. As a result, the needle started oscillating. The torsion angle of the thread was measured using the degree scale marked on the glass case. In order to So, टू एबल टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली आपने देखा बेटा किस तरीके से टॉर्सन बैलेंस था, आपने एक स्फीयर को टच करा, इसके डिस्टेंस को मेजर करा, ये मूव कर गया बिकॉज सेम चार्जेस, ये क्या हो रहा है कंडक्शन, सेम चार्ज आया रिपल्शन हो गया, फिर आपने इसको स्फीयर को निकाल के अनचार्ज करा, फिर इसको रखा, फिर क्या होगा इंडक्शन होगा, फिर देखेंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से, किससे, टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने बेटा एक अपने लिए फॉर्मूला बताया कि दैट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, सपोज कर लिए ये क्या था भाई Q1 है, ये क्या है Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R है। तो क्या हो रहा है, ये जो Q1 चार्ज था इधर, ये जो Q2 चार्ज था इधर, इस Q1 पे इसके सेंटर से इस डायरेक्शन में स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट लीनियरली एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट 2, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट 1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। ठीक है, हालांकि ये किसके लिए वैलिड होता है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो इन्होंने बताया द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, किससे बताया, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, टॉर्सन बैलेंस। एंड अगेन द सेकंड थिंग दे हैव फाउंड, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी नॉट डायरेक्टली क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बताया गया ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो यहां से क्या पता चला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 इंटू व्हाट Q2, दिस इज फर्स्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज व्हाट सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पाया गया, दिस फोर्स इज इक्वल टू K Coulomb constant Q1 Q2 upon what, R square. What is K here? The value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. ठीक है, 1 upon 4 pi epsilon naught। एंड दिस फोर्स, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। एंड व्हेन विल सॉल्व इट्स वैल्यू कम्स टू बी 9 इंटू 10 टू पावर 9, एंड इट्स यूनिट इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्या हो जाएगी, पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये क्या हो गया भाई, पर कूलम्ब स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पाई, वो बहुत ज़रूरी है समझना। पहली चीज़, ये जो फोर्स है, अगर ये Q1 चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो क्या कूलम्ब्स लॉ कैसे लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, इसका नाम क्या हो जाएगा F21, इधर लगेगा फोर्स, इसका नाम क्या हो जाएगा F12। अच्छा, इसी चीज़ को जरा ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा कलर, और देखिए अगर मैं अब क्या कर दूँ कि ये Q1 चार्ज था, ये क्या है Q2 चार्ज है, ये डिस्टेंस है कोई R है। अब मान लीजिए ये फोर्स इधर लग रहा है, ये क्या हो गया F21, और ये फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है F12। तो इस केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, बट इस केस में कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई आपने, कूलम्ब्स लॉ कैसा लगता है, स्ट्रेट वे में लग रहा है, लीनियरली लग रहा है। कैसा लग रहा है, लीनियरली, इस तरीके से नहीं लगता, परपेंडिकुलरली ये नहीं लगेगा, फेल हो गया। ठीक है,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या कूलम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है? नहीं है। क्यों? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कूलम्ब फोर्स। इट डिपेंड्स ओवर व्हाट? द मीडियम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। वी विल डिस्कस इस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एंड यूनिट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, दैट इज कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये सिर्फ किसके लिए है भाई? वैक्यूम के लिए है, ठीक है, और एयर के लिए है। ठीक है, तो जब वैक्यूम होगा मतलब ये इन सारी जगहों पर क्या होगा? एयर होगा या फिर क्या होगा? वैक्यूम होगा, तभी ये वैल्यू आप लगाएंगे, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? एप्सिलॉन लगाएंगे। तो ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बात करी। आगे देखते हैं बेटा लिमिटेशंस इसकी। तो लिमिटेशंस क्या है हमारे पास में? दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लिमिटेशन में क्या आएगा हमारे पास में? इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट? इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्यों? अभी आपने पढ़ा जो फोर्स है वो 1 अपॉन क्या है भाई? आर स्क्वायर है, तो इसी के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, इनवर्स क्या होता है। तो इससे ये पता चलेगा कि जो फोर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है। और जो फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, जो फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास में? कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, वो उनमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन ड्यूरिंग क्लोज्ड पाथ, ड्यूरिंग व्हाट बेटा? क्लोज्ड पाथ, ड्यूरिंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली। अच्छा, और कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं? ग्रेविटेशन पढ़ा था आपने 11th क्लास में, ग्रेविटेशन भी एक कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन सा होता है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगली चीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? पॉइंट चार्जेस। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर पॉइंट चार्जेस वाला शब्द समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी कहाँ होने चाहिए? स्टैटिक। मतलब कहाँ पर होने चार्जेस? कहाँ पर होने चाहिए? रेस्ट में। तो दो चीजें एक साथ समझ रहे हैं हम इसमें। तो बेटा क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज, ये कोई Q1 है, ये कोई चार्ज क्या है? Q1 है, ये कोई चार्ज क्या है? Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? Q2 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट? R। इस तरीके से हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। ये क्या है? ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? पॉइंट चार्ज को बता रहा है कि R बहुत ज्यादा बड़ा हो, R बहुत ज्यादा बड़ा हो, किसके रिस्पेक्ट में? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज व्हाट? Q1 एंड Q2। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? स्टैटिक। मतलब ये चार्ज कहां पर होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। ये वाला भी चार्ज कहां पर होना चाहिए? रेस्ट पे। ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें से ये चार्ज Q1 कहां पर हो? रेस्ट पे हो, और Q2 क्या हो? मोशन हो सकता है। पॉसिबल है ये पॉसिबल है। लेकिन एक और कंडीशन है, वो देखते हैं। मैं कहाँ लिखूं? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये रब कर देते हैं बेटा। तो थर्ड कंडीशन ये है कि Q1 एंड Q2 अगर दो के दोनों किस में आ गए? मोशन में आ गए। दो के दोनों मोशन में आ गए तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दो के दोनों ही रेस्ट होना चाहिए। नहीं, आप क्या समझिए बेटा, एक रेस्ट पे हो तो भी काम चल जाएगा। वैसे दो के दोनों रेस्ट पे रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ व्हेन द चार्ज इज आर्बिट्री शेप। मतलब एक्सटेंडेड के लिए पॉसिबल नहीं है, इर्रेगुलर शेप के लिए। वो कहाँ हम पढ़ेंगे सब चीजें? गॉस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? गॉस में। पॉइंट के लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो दिस इज व्हाट द ऑल द थिंग्स अबाउट व्हाट? कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और ये क्या। अब हम बच्चे इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे इस कूलम्ब्स लॉ के। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? है भाई F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। F इज इक्वल टू हाउ मच? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यही तो होता है। इसको कौन सा हम फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चे, ये कौन सा फोर्स आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों को क्या करना है? हमको कंपेयर करना है। ये कौन सा हो गया? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन वॉट? आर स्क्वायर। इन दोनों को पहले हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। किसके लिए कंपेयर करना है? बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन क्या क्या चीजें समझ लें। यहां तो हम अपने क्या करना है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड F वॉट? ग्रेविटेशन। इन दोनों में अपने को क्या करना है भैया? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन। तो चलो पहले कंपैरिजन ही शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज व्हाट? सेम। ठीक है, चार्ज दोनों पे कैसा होता है? सेम होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो दोनों पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्लस फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड माइनस फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आएगा। But the important thing is that mass on electron is 9.1 into 10 की power minus 31 kg and mass on proton is 1.67 into 10 की power minus 27 kg। ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होंगी इस न्यूमेरिकल में जो हमको दिया हुआ है। मास दिस इज they have given us. Now what are the comparison? If we are starting with the comparison, the first thing is that comparison में तो पहले देख लें सिमिलैरिटीज क्या होंगी इन दोनों की। अभी एक आगे टेबल मिलेगी उसमें बता रखा बेटा। तो सिमिलैरिटी देखें तो चलिए, तो सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो क्या क्या सिमिलैरिटी होगी। फर्स्ट सिमिलैरिटी देखिए दोनों के बीच में, दो के दोनों क्या करते हैं? 1/r स्क्वायर है। तो क्या है? दो के दोनों 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये दो के दोनों फोर्सेस क्या करते हैं भाई? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? दे बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? सोचिए जल्दी से बताइए। What is the next property which you can understand or which you can tell? दोनों में, फोर्स में और इसमें। तो देखिए चलिए एक साथ हम देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों में। देखिए बोथ द फोर्सेज आर व्हाट? सेंट्रल। दो के दोनों फोर्सेस कैसे हैं? सेंट्रल इन नेचर। अभी देखा था। और दो के दोनों क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ द फोर्सेज आर व्हाट? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दो के दोनों फोर्सेस कैसे हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। और अभी आपने पढ़ा दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अब डिसिमिलरिटीज पढ़ लेते हैं। डिसिमिलरिटीज में अगर आप देखेंगे तो जो अलग बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम। एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट? मटेरियल मीडियम, बट इट इज इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? इट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। ग्रेविटेशनल कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। और दोनों में भी आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 38 टाइम्स का डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर होगा। ये मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको कंपेरिजन में हेल्प करे। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 अपॉन व्हाट? R स्क्वायर एंड F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G M1 यानी ME MP अपॉन व्हाट? R स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कौन सा था? ग्रेविटेशनल। चलिए पीछे चलते हैं, हमको सॉल्व करना है वैल्यू को। ठीक है, हमको क्या करना है? वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? K टाइम्स ऑफ E इंटू E अपॉन व्हाट? R स्क्वायर। E इंटू E अपॉन व्हाट? R स्क्वायर। E चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम इज व्हाट? सेम। इसको फर्स्ट लिख के हमने छोड़ दिया। अब हम क्या लेंगे? F ग्रेविटेशनल Fg। ये कितना हो जाएगा? G M ऑफ व्हाट? P इंटू M ऑफ व्हाट? E अपॉन व्हाट? R स्क्वायर। डिस्टेंस विल बी व्हाट? सेम। क्यों डिस्टेंस सेम रहेगा? ये चार्ज Q1 था, डिस्टेंस R था, ये चार्ज Q2 था। तो जो Q1 चार्ज होगा उसका मास कितना होगा? M1। इसका मास कितना होगा? M2। ठीक है, या ME या MP। आपने क्या लिया है? ME एंड MP। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नोटेशंस को।
तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर आ गया ME, यहाँ पर क्या आ गया MP, ये QE और ये क्या हो गया QP, ये भी E होता है और ये भी क्या होता है E होता है। तो R सेम रहेगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से देखूं तो FE/FG मैंने क्या कर दिया 1 डिवाइडेड बाई वॉट 2 कर दिया। तो देखिए क्या आएगा बेटा, K टाइम्स ऑफ E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G टाइम्स MP इंटू ME अपॉन वॉट R स्क्वायर। दिस R स्क्वायर will be what? Get cancelled out, and what we will get? We will get FE upon FG is equal to how much? K times of E square upon G times of what? ME into MP. Do you know what is the value of K? 9 into 10 to power 9 अभी हमने देखा था। तो यहाँ से F जो हमारे पास निकल के आया है वो कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज FE इज इक्वल टू हाउ मच 9 इंटू 10 टू पावर 9। E कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का वॉट होल स्क्वायर माइनस 19। व्हाट इज G 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। इट इज हाउ मच 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 माइनस हाउ मच माइनस 27. When you will solve this, and this is what FG, so that the relationship will be coming what approximately FE is equal to 10 to power 38 टाइम्स ऑफ वॉट FG। और मे बी मेरे बेटा सॉल्व करिएगा आप तो ये हो सकता है 10 की पावर 39 टाइम्स। तो प्लीज़ चेक इट आउट, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो समझ में आया कैलकुलेशन वैल्यूज लगा के। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन भी होता था, हमने कंपैरिजन देख लिया और मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम क्या देख रहे हैं, कुलम्स लॉ की डिफरेंट टाइप्स की बेटा क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आयन इज 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये माइनस 9 पावर में है न्यूटन। तो क्या दिया हुआ है बेटा अपने को, नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने को दिया हुआ है F कितना दे रखा है 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सही कर लिया, प्रिंटिंग में बेटा गड़बड़ी है। एंड when they are separated by a distance, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मीटर है, जो डिस्टेंस है वो R जो दिया हुआ है अपने को कितना दे रखा है बच्चे, इसमें 5 मीटर दिया है। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो अपने से क्या पूछा है, N पूछा है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ा है। आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू हाउ मच K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। अब क्या है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स Q1 एंड Q2 में बी इक्वल टू व्हाट Q, दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग Q, क्योंकि अपने को कंडीशन दी हुई है बेटा इसमें। तो हमने जैसे इसको लिया तो हमारे पास में F कितना निकल के आ गया, K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। समझ में आया बच्चे, हमने ये रखा, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या Q स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखिए कितनी आ जाएगी, F इंटू R स्क्वायर अपॉन वॉट K। सही है ना बात। नाउ देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, क्या आई वैल्यू, Q स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, F इंटू हाउ मच, फिर से देखिए R स्क्वायर एंड अपॉन वॉट K। चेक कर लो भाई, Q स्क्वायर F R स्क्वायर अपॉन वॉट K। तो क्या आ गया, Q स्क्वायर F R स्क्वायर दिस। तो अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू कहूँ तो Q कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ F R स्क्वायर अपॉन वॉट K।
अच्छा ध्यान देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद आया कुछ? अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको हमने कोई इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, बताएंगे क्या क्या हुआ करता था? Q इज इक्वल टू एन ई, याद आया बच्चे? Q इज इक्वल टू हाउ मच? N इंटू वॉट? E। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो बहुत प्यार से फॉर्मूला आ गया फ्रॉम 1 and 2। बोलो भैया क्या आ गया फॉर्मूला? फ्रॉम 1 and 2 एक बढ़िया सा फॉर्मूला आया, और ये कुछ इस प्रकार से आ गया बेटा जी कि N इंटू ई इज इक्वल टू हाउ मच? N इंटू ई इज इक्वल टू हाउ मच भाई? अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन वॉट के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हेयर? 1 अपॉन एन इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर अपॉन वॉट के। या हमको क्या चाहिए था? सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? एन। तो ये ई कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, इतना ही तो है। क्या हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इन रूट ऑफ फोर्स। फोर्स दिया हुआ, जरा देखिए, फोर्स की वैल्यू 3.7 10 पावर माइनस 19 कितना है भाई? 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और क्या दिया हुआ है? आर। आर कितना दे रखा है? 5। आर कितना दे रखा है? 5 मीटर। और के तो पता ही होगा कितना होता है, जल्दी बताओ? 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? तो प्लीज सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज आर व्हाट? सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल। ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या निकाला? फोर्स की मदद से चार्ज का नंबर निकाल लिया। अच्छा, वहाँ इलेक्ट्रॉन था तो माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन होता है, लेकिन नंबर में कभी माइनस साइन नहीं लगता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उतने प्रोटॉन हो रहे हैं। ठीक है बेटा। अब सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है? पिथ बॉल टाइप प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसमें क्या पहले टाइप की प्रॉब्लम होती है कि नीचे वाली बॉल ऊपर वाली बॉल को कितने वेट से, कितने फोर्स से रोके। एक क्या होता है, इक्विलिब्रियम में बन जाए, वहाँ एफवीडी बनती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, अभी देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अ पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, मास दे रखा है। हम फॉर्मूला निकालेंगे, वैल्यूज आप पुट करिएगा। तो मास कितना दे रखा है अपने को भैया? इसमें 8 ग्राम दे रखा है। ठीक है। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 पावर माइनस 8। वो थोड़ा माइनस 8 है, पावर में है। व्हाट मस्ट बी द नेचर? अच्छा, हमको क्या निकालना है? नेचर निकालना है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डैश फाइंड आउट करना है। दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर वन। तो अब जरा डायग्राम बनाते हैं इसका। क्या बनाते हैं बच्चे? हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जरा हम इसका डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा डायग्राम, वो चेक करते हैं। तो हमने ये हमारी कोई एक बॉल ए है, और मैं दूसरे कलर का, सॉरी पेन गिर गया भैया, दूसरे कलर का ले लेता हूं। ये मेरे पास में कोई दूसरी बॉल बी है। ठीक है। दोनों बॉल्स के बीच का जो गैप दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस हाउ मच? दैट द गैप इज व्हाट? इज हाउ मच? 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या दे रखा है? आर। कितना दे रखा है भैया? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो गैप है ये कितना दे रखा है अपने को? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छी बात है। ऊपर वाली बॉल का मास दे रखा है, मान लीजिए वो मास क्या वेट लगाएगा नीचे mg, और नेचर पूछा गया है। तो इसको हवा में रुकना है, तो नीचे वाले का नेचर, जो इसका नेचर है, इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका भी नेचर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। रिपल्शन करते नहीं करते हैं, तभी तो रुकेगा। तो नेचर तो आपने फटाक से पता कर लिया। नेचर कैसा है भैया? पॉजिटिव है। नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। तभी क्यों? क्योंकि अपने को क्या जनरेट करना है? रिपल्शन जनरेट करना है। फोर्स ऑफ व्हाट? रिपल्शन। तो डायग्राम समझ में आया। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इसको इक्वेट करने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? आप जरा देखें। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एटीपी, प्रॉब्लम कहती है कि mg बराबर हो जाएगा k टाइम्स ऑफ q इंटू क्यू डैश अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर।
यू नो द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 9.8 और 10, k आपको पता है, q आपको पता है, r स्क्वायर पता है, तो q डैश रख सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें एक बार, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया mg इज इक्वल टू k q इंटू वॉट, q डैश अपॉन वॉट, r स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू कितनी है, क्या बताएंगे आप मुझे? अगर मैं m की वैल्यू की बात करूं तो पीछे देखिए 8 ग्राम है, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 kg, ये कितना ले लिया मैंने, 10 ले लिया, ठीक है। g को, ये क्या है, g है, ये क्या है, m है, ठीक है। k 9 इंटू 10 पावर वॉट, 9, q डैश इज हाउ मच, 5 इंटू 10 की पावर -8, तो दिस इज हाउ मच, 5 इंटू 10 की पावर वॉट, -8 अपॉन q, this is what q, and we have to find out what q dash, and what is the value of r? In the previous slide the value of r is what, 5 centimeter, so it is what, 5 into 10 की power -2 का whole square. Get it solved? Find out the value of what, q dash, and write the value. Tell me the answer in the comment section. समझ में आ गया? ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी बेटा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या थर्ड कहता है वो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़िए, क्या है थर्ड क्वेश्चन, फिर हम इसको करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन की लिखा है बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस व्हाट, r। तो सबसे पहला काम इसका डायग्राम देखें, तो ये कोई एक +q2 चार्ज है जो क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो ये हो गया गोल गोल चार्ज जो घूम रहा है। अच्छा सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास में, एंड इट्स वैल्यू इज हाउ मच, q1, कितना है ये, q1, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, r। अच्छा समझ में आया नहीं आया? तो अब जरा ध्यान से देखो, जब ये गोल गोल घूमेगा तो एक क्या लगेगा, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक इसको जो काउंटर बैलेंस करेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, F, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू व्हाट, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक तो ऐसी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने कुछ अलग पूछा है। इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज q1, मतलब टाइम पीरियड पूछ लिया। तो एक तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो इसने पूछा है वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब सेंट्रीपिटल का तो इसमें कोई ना कोई भी कंसेप्ट नहीं रहा, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अच्छा क्या लगेगा कंसेप्ट, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो द कंसेप्ट इज, एक मिनट, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, जो F है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही तो लगेगा दोनों के बीच में, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होगा, K q1 q2 अपॉन व्हाट, r स्क्वायर। F इज इक्वल टू हाउ मच, K q1 q2 अपॉन व्हाट, r स्क्वायर। सही है क्या बात है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर होगा, F सेंट्रीपिटल होगा ही होगा बेटा, बनाना पड़ेगा F व्हाट, सेंट्रीपिटल। ये कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन व्हाट, r। याद आया क्या, ये क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन व्हाट, r। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर हम देखें तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू व्हाट, F सेंट्रीपिटल। तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना था हमारे पास में, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है, K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना था, mv स्क्वायर अपॉन व्हाट, r। देखिए ये वाला r इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, तो v निकल के आ जाएगा k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन mr। सही है क्या, और इसका पूरे का क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है बेटा, हमने ये निकाल लिया। अच्छा v क्या होता है, या
आप यहाँ से R निकालना चाहें तो और भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, प्रॉब्लम को इजी कर लेते हैं, हम R निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बेटा अगर देखो R इधर भेज दो, M भी इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन वॉट mv स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट R। सही है क्या? ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया, R निकल के आ गया। टाइम पीरियड निकालना है तो T इज इक्वल टू वॉट 2 पाई R अपॉन वॉट V। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन वॉट वेलोसिटी। ठीक है, ये सही है क्या फॉर्मूला? ऐसा कुछ याद आया? नहीं आया तो देख लो कैसे आया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सही है क्या फॉर्मूला? सर्किल में कोई चीज सर्कुलर मोशन में चल रही है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, टाइम कितना हो जाएगा t। तो t कितना निकल के आ गया भैया 2 पाई r अपॉन वॉट v। r की वैल्यू क्या यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा देखिए t कितना निकल के आ जाएगा 2 पाई r कितना है k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन mv स्क्वायर एंड अपॉन वॉट v। सॉल्व कर लीजिए, आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा। तो दैट इज़ योर वॉट सोल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? तो दिस इज़ योर वॉट द सोल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ आप इसको R भी निकाल सकते हो, इसको इन टर्म्स ऑफ व्हाट R। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ से V की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए तो इन टर्म्स ऑफ R निकल के आ जाएगा। तो आपको मैच करना पड़ेगा। प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि हम प्लेसिंग ऑफ चार्ज की बात करें, प्लेसिंग ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई एक सिस्टम बना हुआ है तो यहाँ पर जो बॉडी होगी, अगर आप हल्का सा फोर्स दोगे इधर जाएगी, फिर क्या होगी इधर जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी। तो इसको क्या कहते थे हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद आया कुछ? यहाँ पर कोई बॉडी होगी, हल्का सा फोर्स दोगे नीचे आ जाएगी, या इधर दोगे तो नीचे आ जाएगी। ये कैसा है? अनस्टेबल। और ये कैसा है? स्टैटिक। ठीक है, ये हमने देख रखा था। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। बहुत सारी प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वेदर द प्रॉब्लम, वेदर द क्वेश्चन, वेदर द चार्ज इन व्हाट स्टेबल और अनस्टेबल, और कैसा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल और अनस्टेबल ही पूछेगा, बाकी सब 11th में आपने देख रखा है। लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम का पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट जो है वो हम जरा चेक करें। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। तो द सेकेंड कंसेप्ट इज रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वो और देख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा वो क्या है? इक्विलिब्रियम अपने को समझ में आ गया। तो क्या अपने को बताना है? स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। कंसेप्ट समझना है ऐसे क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है। अब दूसरा चीज क्या है कि हम कहाँ रखें? प्लेसिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रखने वाली चीज। मान लो ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज भी कैसा है? प्लस क्यू है। या और लगा देता हूँ बीच में, ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज क्या है? माइनस क्यू। मतलब नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस इज व्हाट? सेम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने को? नेचर कैसा दिया हुआ है बच्चे? सेम दिया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझना। और हमको थर्ड चार्ज रखना है। क्या रखना है अपने को? थर्ड चार्ज कहीं रखना है। तो पहली चीज रखें कहाँ? तो इसके लाइन पे रखना होगा। क्या रखना होगा? ये लाइन पे। ऊपर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ऊपर रखते ही नीचे, ऊपर रखने पे क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चेक करें इस बात को कि स्टेबल रखने के लिए ये क्या था? कैपिटल क्यू। ये भी क्या था? कैपिटल क्यू। यही तो पढ़ा अपनों ने। ये दो के दोनों क्या है बच्चे? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। अब मान लो अगर मैं अलोंग द एक्सिस रखता हूँ, अलोंग द लाइन रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? अलोंग द लाइन। तो क्या होगा? यहाँ रखोगे, ये थोड़ा इसको धक्का मारेगा, ये थोड़ा इसको धक्का मारेगा, ऑसिलेट करेगा, नहीं रुक जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर लीजिए, स्मॉल क्यू है, ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा इस डायरेक्शन, तभी तो नेट जीरो निकल के आएगा। तो और अगर आप यहाँ पर माइनस ले लें तो भी क्या होगा? ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, इसको प्लस लोगे तब भी यही होगा। तो इफ क्या कंडीशन निकल के आई है यहाँ से? पहली चीज, इफ द नेचर, if the nature of charge is same, then third charge
is placed in between, ठीक है, थर्ड चार्ज को क्या करना है, इन बिटवीन, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? इसका अपोजिट होगा तो आप समझ लीजिए। तो ये तो बेटा क्या था, कंसेप्ट था। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, टू आइडेंटिकल, रब कर दें इसको। चलिए प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है अपने पास में। हाँ, प्रॉब्लम है टू आइडेंटिकल चार्जेस, सेम वही बात हो गई, दो आइडेंटिकल चार्ज है भाई। तो ये कोई Q है प्लस का, और ये भी क्या है, प्लस का। कि मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लिखा, आप अपनी कॉपी बनाइएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है फ्रॉम ईच अदर। अ थर्ड चार्ज स्मॉल q टू बी प्लेस। अब कहाँ रखना है, दोनों का नेचर कैसा है भैया, या तो प्लस है या दोनों का नेचर कैसा है, माइनस। उसने प्लस लिखा है तो प्लस ले लेंगे। हमने थर्ड चार्ज को यहाँ कहीं भी रख सकते हो, सेंटर नहीं, कहीं पर भी हमने ये रख लिया। जो पहले वाला ये डिस्टेंस a था, ये b है, और ये क्या है, c है। ये डिस्टेंस कितना ले रहा है, x ले रहा है। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a सी के ऊपर ए फोर्स लगा रहा है। सी के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है भैया, ध्यान से देखना प्यार से। सी के ऊपर ए फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा कौन लगा रहा है, बी। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्शन करेगा। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू व्हाट, बी। एंड दे मस्ट बी व्हाट, सिंस इट इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या पाया जाएगा, एफ सी ए इज इक्वल टू एफ व्हाट, सी बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सी ए, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। These two and these two will be what, get cancelled. This is also what, get cancelled. सही है क्या ये बात? तो अब जरा देखिए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो क्या आ गया आपके पास में, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, रूट लगा लिया, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स का रूट, यानी r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से देखा हमने तो क्या निकल के आ गया हमारे पास में, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू व्हाट, 2x, और x इज इक्वल टू r/2। मतलब कहाँ रखा होना चाहिए, एट द सेंटर। और पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो इस x को इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो क्या वैल्यू निकल के जाएगी, चार्ज की वैल्यू निकल के जाएगी। तो समझ में आया क्या? तो ये अपना एक टाइप का प्रॉब्लम निकल के आ गया। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपके लिए। क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमा निकालना है, तो मैथमेटिक्स में से मैक्सिमम में पढ़ोगे, आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेशन, रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है, किसी चीज का फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है अपने को, जीरो कर देना है। क्या कर देना है, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है, जीरो। अगर चार्ज के लिए कहा है तो चार्ज के रिस्पेक्ट में कर देना, डिस्टेंस के लिए कहा है तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर देना। आप क्वेश्चन सुनो, अ चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स पर डिवाइड करना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स विल बी व्हाट, मैक्सिमम। तो इसको आप ट्राई करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। तो एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, चलो कर लेते हैं, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q माइनस q अपॉन वॉट, आर स्क्वायर। इसमें q क्या है, वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, चार्ज के रिस्पेक्ट में इसने कहा है। तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये df ओवर वॉट, dq। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, FBD बेस्ड। इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का। एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो एक पिथ बॉल थी, उसको लटकाया आपने और दूसरी बॉल को रखा, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स आएगा। अब आपसे पूछा गया इसमें निकालना है, तो FBD बस बनानी आनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये दोनों के बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा भाई, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ, या एंगल क्या दिया है, एंड थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद
ईच अदर, हाँ तो 60 डिग्री दोनों से बनाते हैं। तो अब जरा देखिए एफ बनाओगे तो इसका वेट mg कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। mg के ऊपर क्या लगेगा, इस पर क्या लग रहा होगा, टेंशन। टेंशन ये कंपोनेंट थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, t cos 30। थीटा कितना है अपने पास में यहाँ पर 30 डिग्री है। इसका दूसरा कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, t sin 30। ठीक है, रिपल्शन फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किधर लग रहा है, इधर। सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में, तो t cos 30 इज इक्वल टू व्हाट, mg। मैंने थोड़ा तेज बताया इसको तो कोशिश करिएगा समझने। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू t sin 30 नंबर 2। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में देखिए t क्या करा, दोनों को डिवाइड कर लिया तो t cos 30 अपॉन t sin 30 is equal to how much? This is how much? mg, sorry, this is how much? mg upon what? Fe. And what is the value of Fe here? K q1 q2 upon what? r square. R square is what? This is the distance what? R. तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर सोल्यूशन। मास दिया हुआ है 10 ग्राम और डिस्टेंस दोनों के बीच में ये दे रखा है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो गेट इट सॉल्व। सो बेटा दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ व्हाट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस होती है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके, ऐप में जाके पूछेगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट